So welcome to the day 21, Loving Yourself Now. Through mirror work, you discover that you are perfect just as you are and that loving yourself can heal every problem. Congratulations, dear ones. This is the last day of 21-day adventure in mirror work. It has brought you closer to discovering one of the biggest treasures of your life, the gift of loving yourself. This was not just an easy journey. I know there were a few bumps, stumbling blocks along the way, but you stuck with it. I am so very proud of you. कर लेते हैं बहुत सारे बम्प और जंक्स और बहुत कुछ आया है actually throughout this journey you have used your mirror work to help you examine your self talk, quiet your inner critic, forgive those who have hurt you, let go of past fears, and release old beliefs and negative thought pattern. In doing so, you have opened a storehouse of treasure within you. My wish for you is to always remember that there is one thing that heals every problem, and that is to love yourself. अभी मैं पिछले 5 साल की जर्नी में ना अगर मैं देखूं ले दे के घूम फिर के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना ले दे के खुद के पास ही लेके चला जाता है। सेल्फ लव पे ही सॉल्यूशन निकल के आता है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज दैट सॉल्यूशन टू लव योरसेल्फ। When you start to love yourself more each day, it's amazing how your life will get better. You will feel better, you will get the job you want, you will have the money you need, your relationship will improve, the negative one will dissolve and new ones will appear. Although you have completed this course, your mirror work has only just begun. यही मैंने कहा था कि ये तो अभी खाली हमें पता चल रहा है कि करना कैसे होता है, क्या करना होता है। ये तो अभी खाली हमने ए बनाना सीखा है कि ए ऐसे बनता है। इसको प्रैक्टिस जिंदगी भर ए को अलग 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 सेंटेंसेस में और अलग अलग जगहों पे यूज होगा। तो लाइफ में जो भी चीजें आएंगी वो उसमें हमको बार बार अपने आप को मिरर में पॉजिटिव करना होगा। अभी भी सेल्फ डाउट हम्म, आएंगे, सेल्फ क्रिटिक्स होगा, अपने चीजों को ही हम कुछ गड़बड़ होता रहेगा, परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन यही बुक हमें बार बार रिवायर करेगी। Although you have completed this course, your mirror work has only just begun. It's something for you to practice every day. You will not likely encounter more bumps or even a few detours as you continue the journey. But you will be ready. You will be able to pick yourself up, look into your mirror, and remind yourself that you are worth loving. You are perfect just as you are. You deserve all the goodies in the life. You are magnet for miracles. Carry your mirror with you. Keep reminding the beautiful person looking back at you that you love this person with all your heart. Let's affirm. Affirmations. हाँ जी। When I express, when आई एक्सप्रेस yes, when I express love towards myself, and everyone I met, that love comes right back to me. That love comes right back to me.
आफ्टरवुड पेज 181 आगे है. I will leave you with a list of 21 ways you can love yourself now. Let them serve as reminder of the good work you have done over the past 3 weeks, and remember I love you. Mirror work exercise day 21. Go to the mirror and look at the beautiful person looking back at you. Raise your arms and give yourself a big cheers for finishing this course. ये हमने दिखाया फाइनली. हमने किया। यस. हमने किया। Darling, I really love you. You did it. You complete this course. I am so proud of you. And you can do anything you set your mind. Yes. हम कुछ भी ठान लें, हम कुछ भी कर सकते हैं. Take time to express your gratitude for all the work you have done. Say these affirmations. Thank you for hanging in there. Thank you for hanging in there. Thank you for being open to learning something new. I really love you. Make a commitment to continue your mirror play. नेक्स्ट अफर्मेशन है अपने आप को कंटिन्यू इसको वो करने के लिए कमिटमेंट देने के लिए. आई विल सी यू टुमारो गॉर्जियस. एवरीडे अपने आप को शीशे में यही बोलना है, हम कल फिर मिलेंगे. आई विल सी यू टुमारो गॉर्जियस. We will discuss other areas that I will like to change. I love you. You are worth loving. You deserve only the best. हम्म। Power is within you. 21 general exercise journaling. Review your journal from the beginning of the course. Go through each lesson and congratulate yourself to all the work you have done. Write down the area where you have progressed the most. Write down some of the problem areas where you could use mirror work. मैंने अपने और बेटे के रिलेशन को बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ इससे. मेरे और मेरे पेरेंट्स के, मेरे ब्रदर के रिलेशंस को बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ. और मेरे को अंदर से अब कॉलिंग ये आ रही है कि इस राखी पे लाइक इट विल बी अ मैजिकल मोमेंट जो सब शिफ्ट हो चुका होगा मेरे मेरे बेटे और पेरेंट्स में. इट विल बी लाइक हार्मोनियस फैमिली. तो होप ये मिरर वर्क हमारे लिए वहां तक चलेगा. अच्छा, वही। लाइक योर कमेंट. नाउ गो प्ले विद योर इनर चाइल्ड. जाओ और अपने बच्चे के साथ खेलो. वी ऑल आर. अभी लिख लो आपका क्या था चैलेंज और किस पे ये हेल्प किया. प्रॉब्लम एरिया कहाँ पर आप शिफ्ट करना चाहते हो. अभी भी टाइम लग सकता है. पूरी तरह एकदम से ठीक हो गया सब कुछ अभी भी मेरा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो गया है. मैं भी उस पर अभी काम कर रही हम्म। हूँ. तो इसको अभी कंटिन्यू रखना हम्म। है. अपने आप को रोज बोलना है शीशे में, कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे.
ताकि 21 डेज के बाद भी ये लाइफ टाइम एक प्रोसेस बन जाए. Exactly. Your heart thought day 21. We all are part of harmonious whole. Remember, you are a part of community of people all over the globe who are working to make this a better world. We have come together at this time because there is something we need to learn from one another. अब देखो वही वाली बात आ गई कि आप अर्थ पे इस टाइम पे हो ही क्यों, और ये कर ही क्यों रहे हो. क्योंकि we have come together at this time because there is something we need to learn from one another. हम यूं ही नहीं बैठे हैं यहाँ पर, और यूं ही नहीं हमारे साथ ये ट्रॉमास या ट्रिगर्स हुए हैं. कुछ तो हमें चेंज, रेवोल्यूशनरी कुछ बदलाव हो रहा है अर्थ का, इसलिए हमारे साथ ये हो किया गया है. Us to work on loving ourselves so that we may benefit and grow from this experience. We choose to work together to create harmony in our relationships and in every area of life. हमें ऐसा युग की रचना करनी है जहां पर वननेस हो, जहां पर कोई कास्ट डिफरेंस नहीं हो, कोई जेंडर डिफरेंस नहीं हो, कोई रिलीजन डिफरेंस नहीं हो. सब वननेस, एक सोर्स, एक डिवाइन पावर, एक लाइट से आए हैं और एक लाइट ही सबको बन के उसको वापस जाना है. तो हमारे पेरेंट्स को हम तब माफ कर पाते हैं जब हम उनको भी उस लेवल पे एक लाइट की तरह ही देखेंगे कि वो भी अपने लेसन्स लेने, यहाँ कर्मा क्लियर करने और अपने लेसन्स लेने आए हुए हैं. और सेम हम Mm. अपने बच्चों को भी एक लाइट की तरह देखेंगे, और हम अपने लिए भी यही सोचेंगे कि हम भी यहाँ पे एक लाइट बीइंग है, और सिर्फ यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स लेसन्स लेने के लिए आए, एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आए हैं. तो एक्सपीरियंस गुड भी होंगे और बैड भी होंगे, डार्कर भी होंगे और लाइटर भी होंगे. किसी दिन हम ही बहुत अच्छे होंगे और किसी दिन हम ही बहुत नीचे गिरे होंगे. Mm. Divine right action is guiding us every moment of the day. We say the right words at the right time and follow the right course of action at all times. Each person is a part of harmonious whole. There is a divide, blending of energies as we work joyfully together, supporting and encouraging one another in ways that are fulfilling and productive. अब जैसे मैंने तब यही सोचा था कि ये सेशंस चाहे मुझे अकेले करना पड़े, पर मैं इसको करूंगी बुक कंप्लीट. बट Mm. आप आए, चाहे एक बंदा, अब ये आप एक, पता नहीं आगे पूरी की पूरी जनरेशन तो आपने कर ही ली, आगे की सारी. और आपके थ्रू या ये रिकॉर्डिंग्स के थ्रू कितने लोगों का कहाँ तक क्या जाएगा, मेरे को नहीं पता. Mm. मैं सिर्फ इसलिए कर रही थी कि मुझे मेरे पे काम करना है, और ये बुक मेरे को मेरे लिए करनी थी. तो Mm. ये अपने आप होती चली गई, और इसके थ्रू आज रिकॉर्डिंग में इसमें है. पता नहीं 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी यूट्यूब पे वो रिकॉर्डिंग होगी. तो वो एक बंदे के लिए भी अगर ये रिकॉर्डिंग्स हमारी हेल्प कर गई, तो हो गया ना. हम, आप कैसे कह रहे हो कि कोई काम ही नहीं हो रहा. आपके थ्रू पता नहीं कौन किस स्टेज में और खड़ा हो जाए. मतलब मेरे को एक किसी मेरे शायद पीएमसी हिंदी की या पता नहीं कौन से चैनल का कोई वीडियो देख के किसी ने मुझे ये बोला था किसी इवेंट पे कि मैम मैं बिल्कुल सुसाइड वाले लेवल पे था, और आपकी वीडियो सामने आ गई, कैसे आपने वो वाले स्टेज से बाहर आए हो. तो मेरे को हिम्मत आ गई कि यार ये लड़की होके, बच्चा साथ में होकर, और ये वहां से यहाँ आई है, जेंट्स थे कोई. तो उन्होंने बोला कि मैं आज जिंदा ही शायद आपकी वो वीडियो देख के हूँ. और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कोई ऐसी वीडियो कौन सी डाली या क्या हुआ. तो आप अभी सिर्फ इतना सोच रहे हो कि मेरे में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, या मैं कुछ नहीं हो रहा है. आपको पता भी नहीं है क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. अभी ये 21 दिन, ये अगले 21 साल तक वीडियो यहीं रहनी है, वीडियो चैनल पे रहेगी. कब किसके लिए Mm. कहाँ क्या काम कर जाए, आपका एक इंस्पिरेशन, एक वर्ड, वो किसी की जान बचाने का काम कर सकता है.
किसी का रिश्ता बचाने का काम कर सकता है, किसी का हेल्थ बचाने का काम कर सकता है। आप हेल्थ पे काम कर रहे हो, तो आपको ये चैलेंज ही इसीलिए दिया गया है क्योंकि आपको पहले खुद को हील करना है और फिर आप पता नहीं कितने लोगों को हेल्थ का मोटिवेशन दोगे। मेरे साथ जो रिलेशनशिप का आया, मेरा हमेशा रिलेशनशिप का ही पैटर्न चला है। पेरेंट्स के साथ, ब्रदर के साथ, हस्बैंड के साथ, बेटे के साथ, सेम पैटर्न मेरा चल रहा है। मैं आज भी उस पे काम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर और मैं सामने खुल के ओपनली सब बताती हूँ। कल को किसी को ये लगे कि भाई इसके भी ये है चैलेंज और ये कर रही है, मैं भी करके देख लेता हूँ, मेरा भी शायद सही हो जाए। हम्म। तो अगर मुझे ये चैलेंज दिया गया है, इस पे मैं काम कर रही हूँ, इसका मतलब ही यही है कि मेरा सोल पर्पस ही इसी 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 पे ही है। मेरे को लोगों के लिए रिलेशनशिप पे ही आगे हेल्प करनी है। आपको अपनी हेल्थ के थ्रू लोगों की हेल्प करनी है। तो आप ऑलरेडी बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो। आपकी एज में लोग शायद या ये यहाँ बैठ के मिरर वर्क नहीं कर रहे होंगे। आप देखना आपके अराउंड कितनी लेडीज आपकी एज की हैं जो अपने से सेल्फ लव की बात भी सोच भी सकती होंगी। इतने सारे हेल्थ इश्यूज होने के बाद भी कोई अपने से प्यार करने के लिए सोच ले। और आप के थ्रू अगर कोई हॉस्पिटल में बैठा है या कोई ऐसी जगह पे है, इवन अभी कम्युनिटी में भी अ, एक जतिन करके है, उनकी मदर आईसीयू में है आज भी, जिनका हीलिंग चल रही है। अगर ये वीडियोस वो हम्म। देखें, उसी को होप मिले, तो हो नहीं गया आपका पर्पस सॉल्व। तो सेल्फ लव के साथ साथ हम सेल्फिश नहीं होते हैं, हम और ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाते हैं। हम खुद से प्यार करेंगे तो ही तो हमको कोई देख के हम हमसे कुछ सीख पाएगा, कुछ ले पाएगा। हम हाँ जी। तो सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ लव इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम और लोगों के लिए हेल्प कर सकें। There is divine blending of energies as we work joyfully together, supporting and encouraging one another in ways that are fulfilling and productive. We are healthy, happy, loving, joyful, respectful, supportive, and at peace with ourselves and with one another. So to be it, so to be. Like oneness वाली फीलिंग आती है। दूसरी शादी की वीडियोस देख के मुझे ऐसी खुशी हो रही थी कि पता नहीं क्या ही मुझे मिल गया हो। कि इतनी खुशी शायद मुझे अपनी शादी में नहीं होगी जितनी मुझे उनकी शादी की सक्सेस स्टोरी देख के मजा आ रहा था। तो हम्म। ये जॉय, ये भी तो एक मूवमेंट ही है ना। आप अपनी खुशी में तो खुश हुए, वो तो सभी होते हैं, लेकिन दूसरे की खुशी में जब आपको होते हैं। खुशी मिलने लग जाए, तो इससे ब्यूटीफुल हम्म। क्या होगा। जबकि मैं एक टाइम पे मैं हैप्पी कपल्स को देख के जेलस होती थी। जेलस मुझे नहीं पता था कि मैं जेलस हो रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जगहों को जाने में अवॉइड करने लग गई थी जहाँ सारे कजन्स वगैरह अपने हस्बैंड्स के साथ आएंगे या फैमिली सब कपल कपल मिलेंगे, कपल गेट टुगेदर है। हम्म। तो मैं जाना बंद कर दिया था हम्म। कि मुझे अकेले जाने में गिल्ट मतलब अजीब सा फील होता था। जब मैंने मिरर हम्म। वर्क किया, शैडो वर्क किया अपना, तो समझ में आया कि मेरे अंदर जेलसी है। किस इस चीज की, अब जरूरी नहीं जेलेसी पैसे की किसी को देख के हो या करियर को हो, सक्सेस को देख के हो। हम्म। मुझे रिलेशनशिप का हमेशा चैलेंज हाँ है, तो जी। मुझे रिलेशन देख के जेलेसी होती हम्म। थी। हम्म। पहले मैं ये कहती थी नहीं मेरे को तो ऐसी कोई जेलेसी नहीं है, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा दूसरे को देख के। तो शैडो, हम्म। इसके बाद हम मिरर वर्क के बाद अब नेक्स्ट शैडो वर्क वाली स्टार्ट करेंगे जहां पे हम अपने डार्कर साइड्स को भी देखेंगे। अच्छा अच्छा तो हमने खुद को कह लिया, लेकिन डार्कर साइड भी देखने जरूरी है। हम्म। तो वहां मुझे समझ में आया था, मैंने किया था वो शैडो वर्क वाला, अभी भी करती हूँ। जहां पे समझ में आ गया था कि मेरे है जेलेसी, अभी उसको हील हो चुका है। इसका प्रूफ ये है कि दूसरे की शादी की वीडियो देख के, यूनियन का वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। दैट मीन्स वो सही। हीलिंग हो गया। योर मेडिटेशन अ वर्ड दैट इज सेफ। इवन मुझे मेरे एक दो क्लाइंट्स ने ये भी बोला कि यार मैम हम तो इतने टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं हुआ है,
मैंने कहा इसी चीज में खुश हो ना कि उनका हो गया है, उनको ब्लेसिंग करो। Day 2 meditation, a word that is safe. We have touched on many things in past 21 days. We have talked about negative things, positive things. We have talked about fears, frustrations. Many of us still do not trust ourselves to take care of ourselves and still feel lost and lonely. Yet we can been working on ourselves for some time and have noticed that our own lives are changing. Lot of people in the past aren't problem anymore. It doesn't change overnight, but if we are persistent and consistent, positive things do happen. So let's share the energy we have, the love we have, the other people with other people. Know that as we give from our heart, we are also receiving from other hearts. Let's open our hearts so that we can take in everyone with love, support, and care. Let's move that love to people in the street who have no homes and no place to go. Let's share our love with those who are angry, frightened, and in pain. Let's send love to the people who are in the process of leaving the planet and those have already left. Let's share our love with everybody, whether they accept it or not. Let's hold the entire planet in our hearts, the animal, vegetation, all the people we are angry at and frustrated with. Like मुझे अ, जानवरों से कुछ खास प्यार नहीं था। इवन मैं डरती थी डॉगीज से। अभी मैं टच करने लग गई हूँ डॉगीज को और मुझे उनके लिए एक लव, एक एम्पैथी वाली फीलिंग आने लग गई है। तो यही आपका इनर वर्क का वो है कि आप खुद से जब प्यार करोगे तो ही परमात्मा की बनाई हुई हर चीज से प्यार हो पाएगा। तो मैं खुद से डरती थी, चीजों को मेरे अंदर इतने फियर थे, इसलिए मुझे डॉगी से या जानवरों से डर लगता था। अभी उनसे मुझे प्यार आने लग गया है। एंड दोज आर एक्सप्रेसिंग सो कॉल्ड नहीं, let's hold the entire planet in our hearts, the animal, the vegetation, all the people we are angry at or frustrated with, those who are not doing things on way, and those who are expressing so called evil. Let's take them into our hearts too, so that from a feeling of safety, they can begin to recognize who they really are. ये सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है जो आपके कार्मिक्स हो या जो आपको लगता है एविल की तरह काम कर रहे हैं, नेगेटिव लोग हैं। जैसे अगर प्लैनेट अर्थ पे देखें तो जो लोग गलत काम कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं या ड्रग्स है या रेपिस्ट है या जो भी नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, एविल काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अपना दिल बड़ा रख के उनके को भी ब्लेसिंग और डिवाइन लाइट देनी है। उनको भी विजडम आए, उनको भी है तो वो भी एक सोल ही है, अभी भटक भटक चुके हैं, गलत रास्ते पे हैं, उनके लिए भी लव और लाइट देते हुए, इवन जो हमारे कार्मिक्स है जिन्होंने हमें बहुत ट्रॉमा भी दिया हो, चाहे वो इस प्लेनेट अर्थ को छोड़ के भी जा चुके हो, उनको भी लव देना है और उनको भी माफ करके रिलीज करना है। उससे हम हमारा दिल बड़ा हो रहा है, हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं होगा, हमारा हार्ट ओपन रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके उनसे माफिया मांगे कि वो दोबारा से सेम चीज हमारे साथ कर सके, अगर इधर है हम्म, प्लेनेट पे तो। बट उनसे ग्रजेस नहीं रखने हैं, बस लव देके उनको डिवाइन लाइट में डाल देना कि हे परमात्मा, इसने जो किया इसके कर्मा तू देख, कर्मा के हिसाब हम्म, किताब सबको अपना देना पड़ेगा, मैं अपना सही रखूंगी, मेरे हार्ट में से उसको लव जा रहा है, तो यूनिवर्स में आप जो दे रहे हो वही घूम के वापस आ रहा है। तो हम तो लव ही देंगे। हाँ, जहां पर डायरेक्ट हिट पड़ता है, आपको डायरेक्ट कोई आपकी बाउंड्री पार करने की फिर से कोई कोशिश करे, वहां पे बाउंड्री जरूर बनानी है और सीधा क्लियर बोलना है कि नो, ये बाउंड्री आप पार नहीं कर सकते हो। अभी कल मेरे को किसी ने बड़ा मतलब 2-3 बार, 5-6 बार लगातार ऐसा बोला, आप दिल्ली वाले तो ऐसे होते हो,
आप लड़कियां ऐसी होती हो, मतलब कुछ बिलीव्स को लेकर बार बार सेम पैटर्न पे अटैक। तो वो क्यों बार बार हो रहा था? क्योंकि मैं अपनी बाउंड्री के लिए आवाज ना उठा के उसको वहीं रोक नहीं रही थी। तो वो बार बार अपनी बाउंड्री को पार करता चला जा रहा था। मैंने बिल्कुल क्लियर उसे बोला कि मेरे लिए सब कास्ट, सब जेंडर, सब रिलीजन सब एक हैं। कोई लड़का लड़की ऐसा मेरे मेरे मेरी डिक्शनरी में नहीं है। डोंट ट्राई टू क्रॉस योर बाउंड्री। तो वहां आपको फर्मली और गुस्से से भी अगर बोलना पड़े, तो वो बोलना इज नॉट रॉन्ग। बाकी आप पीस दो, बाकी आप लाइट ही दो, लव ही दो, लेकिन जहां हम्म। बोलना पड़े वहां हम ये नहीं देख सकते कि पीस बनी रहे। सी पीस ब्रेकिंग आउट ऑल ओवर द planet. Know that you are contributing to that peace right now. Rejoice that you have the ability to do something positive to help. Acknowledge how wonderful you are. Know that it is truth for you and so it is. ये वही वाली बात जो मैंने आपको बोली थी कि हम इतनी बड़ी अर्थ पे इतनी नेगेटिव चीजों के बीच में, हमारे इस 21 दिन के बीच में इतनी सारी नेगेटिव न्यूज आपने भी सुनी होंगी। इससे पहले हमने बड़े सारे ऐसे केसेस भी सुने हैं जहाँ ब्लू ड्रम भी हो रहा है, मेघालय वाला भी हो रहा है, प्लेन क्रैश हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सबके बीच में भी हम यहाँ बैठ के अगर इतनी सी भी अर्थ की ऊर्जा को हम बढ़ा पाए, पॉजिटिव कर पाए, तो आप कैसे कह रहे हो कि काम नहीं हुआ है? हम पूरी प्लैनेट पे हम सब एनर्जीज है ना, तो हम अगर अपने आप को ऊपर, अपने को ऊपर उठा रहे हैं, तो पृथ्वी की एनर्जीज तो उठ रही है ना। हम भी तो प्लैनेट का, अर्थ का वही एनर्जीज ही हैं। तो हम, अगर हम उठ रहे हैं, तो अर्थ की फ्रिक्वेंसी उठ रही है। अदरवाइज तो खत्म हो जाएगी अर्थ, सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, एकदम महामारी, मतलब ऐसा माहौल हो जाएगा कि सब, अगर हम माफ नहीं करें किसी को, तो यहाँ तो युद्ध छिड़ जाएंगे, रोज महाकलेश होएंगे। और पहले जैसे जनरल लैंग्वेज में तो यही बोला जाता है ना कि माफ कर देने वाला सबसे बड़ा वो होता है, लाइक सबसे बड़ा जो आप पुण्य कर सकते हो वो किसी को माफ कर देना होता है। और उसको माफ कर देना और खुद को माफ कर देना। तो ऑलरेडी हम गुड कॉज कर रहे हैं, और लॉ ऑफ कर्मा तो है ही है कि अगर हम अपने आप को माफ कर रहे हैं, तो वो भी तो कर्मा, हम अपने साथ भी तो एक अच्छा कर्मा कर रहे हैं। दूसरे का तो छोड़ो, खुद को माफ कर दिया तो अपने लिए एक गुड कॉज कर दिया कि शुक्र है भाई, खुद को तो माफ किया। तो एक कर्मा एवरी डे, गुड कॉज बोलते हैं ना, रोज एक अच्छा कर्म करो। तो रोज एक अच्छा कर्म कर पा रहे हैं खुद को माफ करके। I am so, afterwards, I am so happy, dear reader, to have been able to share with you the practice of mirror work, which has been so valuable to me in my life. My hope is that you too find mirror work valuable as a vehicle for positive growth and self-care. In closing, I would like to leave you with 12 ways you can love yourself now and always. Let them serve as reminders of what you have learned over the past 3 weeks and provide you with ongoing support for joyous and fulfilling life. And always remember, I love you. Louise Hay. 12 ways you can love yourself now and always. Stop all criticism. Criticism never changes a thing. Refuse to criticize yourself. Accept yourself exactly as you are. Everybody changes. When you criticize yourself, your changes are negative. When you approve of yourself, your changes are positive. जब तक हम दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, जब तक हम खुद को क्रिटिसाइज करेंगे, जब तक हम दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे। जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे, तब हम दूसरे को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको नींद आ रही है ना? तो मैं फटाफट से ये शेयर कर देती हूँ। फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ करना है, दूसरे को माफ करना है। डोंट स्केयर योरसेल्फ, खुद को नहीं डराना है, अपने मेंटल पीस को रिलैक्स रखना है। बी जेंटल एंड काइंड एंड पेशेंट, अपने साथ भी काइंड रहना है,
हरी में नहीं रहना है, पेशेंट रहना है। ट्रीट योर सेल्फ एज यू वुड ट्रीट एनी वन यू रियली लव। Be kind to your mind. Self hatred is hating your own thoughts. Don't hate yourself for having the thoughts. Gently change the thought to more life. नेगेटिव थॉट आएंगे, खुद को, माइंड को बार बार रीवायर करना है नेगेटिव सोचने से। और उसके लिए भी माफ करना है कि वो नेगेटिव क्यों सोच रहा है। अभी एक कल परसों कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैम मैं जितना भी कोशिश करूं, मुझे नेगेटिव ही क्यों आता है पहले, और इतना नेगेटिव आता है कि सीधा, जैसे वो बाइक पे जा रही है, तो अगर बाइक फोन मुझे पकड़ा रहा है कोई, तो मुझे लगता है बाइक गिर जाएगी या मैं गिर जाऊंगी या फोन गिर जाएगा, टूट जाएंगे, कुछ तो हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सड़क पे निकलते ही मेरे को नेगेटिव ही थॉट क्यों आता है? तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी यही है। अगर पूरी व्हाइट वॉल होगी ना, उस पे एक छोटा सा काला डॉट होगा, तो हमारा दिमाग वो नेगेटिव काले डॉट पे ही जाएगा। माइंड का खेल ही वही है कि वो पहले डिजास्ट्रस थॉट ही क्रिएट करेगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर मिराकुलस। जितनी बार हम अपने आप को, माइंड हमारे साथ खेलने की जगह हमें माइंड के साथ खेलना है। जैसे ही वो डिजास्टर्स या नेगेटिव थॉट क्रिएट करने लगेगा, बार बार हमें उसे पॉजिटिव की तरफ धक्के मार के लेके जाना पड़ता है कि भाई ये थॉट क्रिएट, ये मेरे को सर्व नहीं कर रहा, कट दिस हम्म, थॉट, कट दिस थॉट। और उसका सबसे बढ़िया तरीका वही है, अफर्मेशंस। जितना पॉजिटिव हम अफर्मेशन अपने माइंड को डाटा देते रहेंगे, वो उधर की तरफ जाना कम कर देगा और पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। बार बार अफर्मेशन से ही हम रीवायरिंग कर सकते हैं। इसके बाद मुझे लगता है हम 2-3 दिन का ब्रेक लेके 21 डेज अफर्मेशन वाला स्टार्ट कर लेते हैं। वो फटाफट हो जाएगा। हम डेली की अफर्मेशन बोलेंगे, फील करेंगे, या तो मेडिटेशन ही कर लेंगे उसकी अफर्मेशंस की, ताकि वो हमारा डाटा सेव हो जाए। अभी हमने प्रैक्टिकल सीख लिया, मतलब थ्योरेटिकल सीख लिया, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई 21 डेज करेंगे तो मैजिकल हो जाएगा। प्रेज योरसेल्फ। क्रिटिसिज्म ब्रेक डाउन योर इनर स्पिरिट। प्रेज बिल्ड इट अप। प्रेज योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। Support yourself. Find ways to support yourself. Reach out to friends and allow them to help you. It is being strong to ask for help when you need it. सबसे इम्पोर्टेंट, अभी आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, तो वो किसी के बारे में बता रही थी कि उसके हस्बैंड, लाइक, ही डाइड, और उसके बाद वो किसी से हेल्प नहीं ले रही है लड़की। तो मैंने उसे ये कहा कि अगर वो, उसने इस तरीके से बताया कि वो बहुत खुददार है, वो किसी से हेल्प नहीं ले रही है। दैट इज नॉट खुददारी। आपकी नीयत अगर साफ है, आस्क फॉर सपोर्ट। मैंने मेरे वाले टाइम पर मेरे को रेंट लेने में भी अपने ही पेरेंट्स से मांगने में भी शर्म आ रही थी। मैं नहीं मांग पा रही हम्म, थी। तो वो फियर था मेरा, वो ईगो थी। वो फियर क्या था कि शायद मैं उतार नहीं पाऊंगी, या मैं लेस डिजर्विंग हूँ, मैं कम हूँ किसी चीज, कोई चीज मुझे अटक रही थी कि मैं सपोर्ट हेल्प नहीं ले सकती थी किसी से। फिर समझ में आ गया कि अगर यूनिवर्स ने मेरे को किसी को भेजा है मेरी हेल्प के लिए, आई एम रेडी टू रिसीव दैट हेल्प। तो बी लविंग टू योर negatives. Acknowledge that you created them to fulfill a need. Now you are finding new positive fulfill those needs. Loving release the old, and जो भी आपकी needs भी हैं, वो भी सब fulfill होंगी। Take care of your body. Learn about nutrition. What kind of fuel does your, हमारे कम्युनिटी में ही है रेहाना, अभी मैंने उससे अपने बेटे की भी और मेरी भी पूरा डाइट प्लान बनवाया है कि हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट प्लान। तो लव योर बॉडी, हैव फन, रिमेंबर द थिंग्स दैट गेव यू जॉय एज अ किड, इनकॉर्पोरेट देम इन योर लाइफ। जो भी चीजें आपको खुशी देती हैं, आपकी हॉबी जरूर स्टार्ट करो। मैं हर बार हर किसी को यही बात जरूर बोलती हूँ कि हॉबी हॉबी के साथ कनेक्टेड रहो। हॉबी हम बचपन से कर रहे हैं, तो जैसे ही आप हॉबी करोगे ना, आप बचपन से कनेक्ट हो जाओगे। याद करो कि आप बचपन में 10th की जो छुट्टियां थी या और छोटे एज में क्या करते थे। मेरा तो पेंटिंग होता था। अभी मैं कथक क्लासेस भी ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। मेरे को डांस घुंघरू वाले, मुझे याद आ रहा है कि मैं घुंघरू पहन के घूमती रहती थी घर में। लव योरसेल्फ, डू इट नाउ। डोंट वेट until get well or lose weight and get a new job or find a new relation.
जैसे भी हो आप, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एकदम परफेक्ट होना है कि मैं पतली हो जाऊं या पूरे बढ़िया जॉब हो जाए। रोज थोड़ा हम्म। थोड़ा करते करते हो जाएगा। डू योर मिरर वर्क, द बेस्ट चीज यही है। डू योर मिरर वर्क। बस हो गया, अब आप सो जाओ। अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लेंगे और हम्म। खुद को सच में हक करेंगे। थैंक यू ज्योति। Thank you थैंक यू for अलका। completing. आपको भी थैंक यू। बहुत Thank बहुत you. ग्रेटिट्यूड यहाँ बने रहने के लिए। और 21 दिन, 21 नहीं, 21 के कितने दिन बढ़ गए हैं। स्टिल यू हैव, ज्यादा दिन ज्यादा ही हो गए हैं, बट पेशेंस के साथ आप बने रहे। कितनी पूरा बार मैंने किया। मना किया कि आज सेशन नहीं होगा आज, बट स्टिल यू शो अप एंड थैंक यू। और सॉरी, जो भी आपका भी जैसे थैंक भी यू, हुआ। आपने कराया इतना कुछ। इतनी मिलके नॉलेज दी, कर रहे हैं भाई। इतना टाइम अच्छा निकाला। एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग कि हम खुद के साथ बैठ पा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे हैं। जित कोई भी रिलेशन अगर इक्वल गिव एंड टेक रिलेशन है ना, वो लॉन्ग टर्म चलता है। मैं आपकी सपोर्ट से हूँ और आप मेरी सपोर्ट से हो, तो यहाँ कोई ईगो का वो नहीं है कि मैंने आपके लिए कुछ किया या आपने मेरे लिए किया। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठ के ये म्यूचुअल वननेस में एक स्टडी करी और विजडम ली। दोनों के लिए ही इक्वली हम साथ में चले। हम्म। तो बस यही मजा है जिंदगी का। यही जिंदगी में अगर हम करें कि सब बस आए हैं और सब सब अपना अपना वननेस, तभी आ जाएगी कि सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। मैंने अपना रोल किया कि हाँ मैं बोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप उतना ही एफर्ट डाल रहे हो सुनने में, समझने में, उसको अप्लाई करने में। आप आपका रोल कर रहे हो, मैं मेरा रोल कर रही हूँ, तो इसमें कोई महानता या कोई ईगो वो है ही नहीं है कि मैंने कुछ किया। मैं अकेले हम्म। बोलती रहूंगी, आप सुनने वाला ही कोई नहीं होगा, तो मेरी ईगो क्या करेगी। तो वही लाइफ में है। जिसने भी हमारे साथ कुछ गलत भी किया है, उसने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। और ये बहुत हार्ड वे समझ में आता है, गुस्से में समझ में नहीं आती ये बात। हम्म। और ये समझ आते आते ही आएगी। कोई डिलीट बटन भी नहीं है कि सीधा हम डिलीट कर दे। तो हम बटन लगे राखी वाले निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर हम अफर्मेशन वाली 21 डेज की वो फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक तब है। तक आप इसको एवरी डे, अलका मैं कल मिलूंगी तेरे से, बोलते बोलते फिर से आगे बढ़ते हैं। चलो बाय बाय, थैंक यू, लव यू। बाय। थैंक बाय यू। बाय। बाय।